Yes, we in the chapter of nuclear physics we began yesterday with a term called as mass defect. What does the mass defect means? It is the difference between the mass of the nucleus and the sum of the individual masses of the proton and neutron. So, for example, if this is a whole nucleus we are having, and in this whole nucleus, already there are some protons and neutrons being present inside it. So in a nucleus, the protons and neutrons are present. So when this nucleus splits, when this nucleus breaks, and its protons and its neutrons get free, or they get apart, so this total mass of the nucleus and the combined mass of these neutrons and protons, combined mass of these neutrons and protons is not equal. So the difference between the mass of these protons and neutrons and the total mass of the nucleus is called as, this difference is called as mass defect. And how do we find out the mass defect? Mass defect is represented by a symbol delta M, and it is known as what? Z times of MP. What is Z? Z is known as number of protons. Z is number of protons. MP is mass of proton. MP is mass of proton. Likewise, this A minus Z is representing number of neutrons multiplied by mass of neutrons. Now you are going to subtract it, the total mass. It is the total mass of nucleus. It is the total mass of nucleus. तो न्यूक्लियस के टोटल मास से आप इसको सब्ट्रैक्ट कर देंगे, एंड दिस विल बी नोन एज और कॉल्ड एज mass defect. So mass defect is equals to ZMP plus NMP minus M total. So this was already discussed in the yesterday class. So moving onward, then we just studied another term which is called as binding energy. So what is binding energy? The energy required to break a nucleus into its constituent protons and neutrons. इसके साथ एक word add कर लीजिएगा, last day मैंने ये definition आपको लिखवाई थी, इसके साथ ये भी लिख लीजिएगा कि the energy required to break a nucleus into its constituent protons and neutrons completely. Do write the word completely, या आप completely नहीं लिखना चाहते तो आप ये भी वर्ड लिख सकते हैं, बिकॉज दीज वर्ड्स आर एडेड इन द मार्किंग स्कीम्स. आइदर आप completely लिख लो तो 2 marks की फुलफिल हो जाएगी डेफिनेशन, और यू कैन ऑल्सो राइट डाउन till infinity. You can write any of the word, either this or this. ठीक है? The energy required to break a nucleus into its protons and neutrons completely or till infinity. Completely or till infinity. पूरा का पूरा या बिल्कुल infinity तक. And then we are going to use this formula to find out the binding energy. The C stands for binding energy. This delta M stands for mass defect, and the C stands for speed of light. Is this fine? Yes, sir. Okay, moving onwards, next we studied about the relationship between the binding energy per nucleon. So there's another term which is called as binding energy per nucleon. तो जब आप binding energy निकाल लेते हो किसी न्यूक्लियस की और उसको डिवाइड करते हुए उसके नंबर ऑफ न्यूक्लियॉन्स है, नंबर ऑफ न्यूक्लियॉन्स में क्या आ जाता है? प्रोटॉन नंबर प्लस न्यूट्रॉन नंबर. तो अगर इस नंबर ऑफ न्यूक्लियॉन को आप डिवाइड कर देंगे किसके साथ? with the binding energy of the nucleus, this is going to give us another term which is called as binding energy per nucleon. अब बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन बहुत इंपॉर्टेंट है अंडरस्टैंड करना या बाइंडिंग इसको यूज करना, because what does it tells us? It tells us that higher is the binding energy per nucleon. It tells us that higher is the stability of the nucleus. Like it means more is binding energy per nucleon, more
is the stability of न्यूक्लियस। के न्यूक्लियस की स्टेबिलिटी उतनी ज्यादा होगी, उतना हाई स्टेबल होगा। सो यहाँ पर हम देख सकते हैं वी आर हैविंग अ ग्राफ, और ये ग्राफ आपको एग्जाम में पिछले पेपर्स में बनाने को भी आ चुका हुआ है कि आपने इसका एक रफ सा स्केच बनाना है। लाजमी नहीं है कि बिल्कुल इसी तरह से एग्जैक्ट वे में बनाना है, बट एक रफ सा स्केच बिटवीन व्हाट द बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन ऑन वाई एक्सिस एंड नंबर ऑफ न्यूक्लियॉन्स प्रेजेंट इन ऑन एक्स एक्सिस। तो नंबर ऑफ न्यूक्लियॉन्स आपके पास बढ़ते जाएंगे एक्स एक्सिस पे जैसे ही आप आगे जाओगे, और लेट्स से जब आपकी बाइंडिंग एनर्जी बढ़ती जा रही है पर न्यूक्लियॉन ऑन वाई एक्सिस आप इंक्रीज कर रहे हो, तो होगा क्या? मैंने अभी आपको बताया कि जिस एलिमेंट का की बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियॉन सबसे ज्यादा है, लाइक अगर हम देखें आयरन की बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियॉन की वैल्यू, इट इज द हाईएस्ट मोस्ट, राइट? इट इज हाईएस्ट मोस्ट। तो बाकी सारे एलिमेंट्स की बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियॉन आयरन से कम है, तो वी आर गोइंग टू कॉल दिस आयरन एज द मोस्ट स्टेबल एलिमेंट ड्यू टू द हाईएस्ट बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियॉन। इसका मतलब जब हम यहाँ से नीचे जाएं, यानी कि जिन जिन न्यूक्लियसेस के जिन न्यूक्लियसेस के आपके पास न्यूक्लियॉन नंबर स्मॉलर है, जिन न्यूक्लियस का आपके पास न्यूक्लियॉन नंबर स्मॉलर है, उन न्यूक्लियसेस का उन न्यूक्लियसेस की आप देख सकते हो कि बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियॉन भी कम है, इट इज लेस। तो इसका मतलब क्या हुआ कि व्हेन द बाइंडिंग एनर्जी per nucleon is less, so this shows all these या more of these elements will be represented as अनस्टेबल, या इनकी स्टेबिलिटी काफी कम होगी। ऐसा नहीं है कि वो पूरे के पूरे ही अनस्टेबल होंगे, बट दिस मे माइट हैपन दैट दे आर लेस स्टेबल एज कंपेयर टू द अदर nucleuses or elements. And similarly when we talk about the heavier nuclei, जैसे ही न्यूक्लियॉन नंबर आगे बढ़ता जा रहा है, तो आहिस्ता आहिस्ता यू कैन सी ग्रेजुअली द binding energy per nucleon is decreasing. When binding energy per nucleon is decreasing, what does this shows? That elements or the nucleuses or nuclei are becoming more unstable because their energy per nucleon is getting less. So आयरन से राइट साइड पे जितने भी हैवी न्यूक्लियाई हैं वो कौन सा रिएक्शन अंडरगो करते हैं? न्यूक्लियर फिजन का। ये आपको पता होना चाहिए, एग्जाम में पूछा जाता है। और आयरन से पहले जो सारे लाइटर न्यूक्लियाई हैं, दे अंडरगो व्हाट रिएक्शन? दे अंडरगो फ्यूजन रिएक्शन, FUSION। तो व्हाट इज फ्यूजन एंड फिजन, उसको हम अभी आगे चलकर एक्सप्लोर करते हैं। तो ये ग्राफ को इंटरप्रेट करना आपको आना चाहिए। इसकी इंटरप्रिटेशन या नोट्स में भी लिखी हुई है कि व्हाट आर द की फीचर्स ऑफ द ग्राफ। एट लो वैल्यूज ऑफ ए न्यूक्लियाई टेंड टू हैव लोअर बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियॉन, हेंस दे आर लेस स्टेबल। जिसका मतलब ये है कि लाइटेस्ट एलिमेंट्स की जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्सेस होंगी वो वीक होंगी, एंड दे विल अंडरगो द फ्यूजन रिएक्शन। वेयर एज अगर हम हाई वैल्यू ऑफ ए के ऊपर बात करें, तो जनरली बाइंडिंग एनर्जी इज हाई और ग्रेजुअली डिक्रीज कर रही है ए के साथ। तो इसका मतलब ये है कि हैवीएस्ट एलिमेंट्स जो होंगे दे आर प्रोबेबली मोस्ट अनस्टेबल, और वो कौन सा प्रोसेस अंडरगो करेंगे? दे आर गोइंग टू अंडरगो द प्रोसेस ऑफ फिजन। ठीक है, ये नोट्स में आपसे शेयर कर दूंगा, उसमें ये बातें लिखी हुई हैं। नेक्स्ट अब हम एग्जाम्पल पे चलते हैं जिसपे हम बाइंडिंग एनर्जी और बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियॉन और मास डिफेक्ट को कैसे यूज करना है कैलकुलेशन में, उसको थोड़ा सा डिस्कस करते हैं। लेटर वी विल बी सॉल्विंग द क्वेश्चंस फ्रॉम द पास्ट पेपर to indicate how to use these terminologies. So question simply ask from you, determine the binding energy per nucleon of iron 56 in what units? In mega electron volt. Okay, anyone sitting in the audience, can you people tell me what is the value of 1 electron volt? बेटा कोई बता सकता है 1 electron volt की क्या वैल्यू होती है? मैंने आपको पढ़ाया हुआ है इन द चैप्टर ऑफ quantum physics, I remember. One Sir, electron volt is how much? 1.6 into 10 power negative 19. Yes, it is 1.6 into 10 power minus 19 joules. और कोई मुझे बता सकता है कि ये इलेक्ट्रॉन वोल्ट जो है ये किस चीज का सिंबल है, ये किस चीज का यूनिट है?
It is used to measure which quantity? The small values of energy. Exactly. It is measuring the smaller units of energy. It is measuring the smaller units of energy. तो एनर्जी के छोटे यूनिट्स मेजर करने के लिए हम क्या यूज करते हैं? वी टेक द हेल्प ऑफ इलेक्ट्रॉन वोल्ट, EV. So 1 electron volt will be equals to 1.6 into 10 power minus 19 joules. 1.1 electron volt is equal to 1.6 into 10 power minus 19 joules. So question says determine the binding energy per nucleon of what? Of iron in what units? In a unit called as mega electron volt. अब हमें इंफॉर्मेशन क्या गिवन है? वी आर प्रोवाइड विद द मास ऑफ न्यूट्रॉन, वी आर प्रोवाइड विद मास ऑफ प्रोटॉन, वी आर प्रोवाइड विद द मास ऑफ आयरन होल. द टोटल मास ऑफ आयरन हमें दिया हुआ है, एंड टोटल मास ऑफ द आयरन गिवन टू अस इज हाउ मच? इट इज 9.288 into 10 raised to power minus 26. तो क्वेश्चन हमें क्या कह रहा है? हमें फाइंड करनी है बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन. We have to find out the binding energy per nucleon. So I told you and taught you yesterday that for finding out the binding energy, what formula we are going to use? For finding the binding energy, we are going to use the formula of mass defect or change in mass or difference in mass of the reactants and the products multiply by square of C. This is the formula which we are going to use to find out the binding energy. और बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन जब फाइंड करनी है तो उसको हम डिवाइड कर देंगे नंबर ऑफ न्यूक्लियॉन्स. व्हाट आर द नंबर ऑफ न्यूक्लियॉन्स फॉर आयरन? इट इज 56. तो फर्स्ट ऑफ ऑल, अब इस पार्ट के अंदर हमें क्या काम करना है? वी हैव टू फाइंड आउट द मास डिफेक्ट. डेल्टा एम इज नोन एज मास डिफेक्ट, और इसका फॉर्मूला मैंने आपको कल पढ़ा चुका हूँ. मास डिफेक्ट किसके इक्वल होता है? मास डिफेक्ट का फॉर्मूला हम ये यूज करेंगे. मास डिफेक्ट will be equals to number of protons into mass of proton plus number of neutrons into mass of neutrons. इन दोनों को आपस में ऐड करेंगे और माइनस कर देंगे फ्रॉम द टोटल मास ऑफ आयरन. ठीक है, तो ये हमारा मास डिफेक्ट आ जाएगा. तो लेट्स फाइंड इट आउट कि ये कैसे सॉल्व होगा. आई नो मास डिफेक्ट की वैल्यू यहाँ पे सॉल्व भी हो, मैं डायरेक्टली दिखा भी देता हूँ. अब इस फॉर्मूला को मैं डेप्यूट कर रहा हूँ फॉर फाइंडिंग द मास डिफेक्ट, एंड इट्स वैल्यूज आर शोन हियर. So for the mass defect, you can say the proton number for what are the number of protons in the iron? Iron के अंदर number of proton है 26. तो पहले number of proton लिख दिए. फिर एक प्रोटॉन का मास कितना है? द मास ऑफ वन प्रोटॉन इज 1.673 into 10 power minus 27. फिर प्लस करूंगा कितने नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स है. नंबर ऑफ न्यूट्रॉन कैसे आते हैं? 56. और क्योंकि 56 जो है न्यूक्लियन नंबर है, न्यूक्लियन नंबर में से प्रोटॉन निकाल देंगे तो कितने क्या आ जाएगा? नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स. So 56 minus 26 is going to give me what? It will be giving me the number of neutrons. और इस number of neutron को multiply कर देंगे with the mass of neutron. तो ये मेरे पास आ जाएगा total mass. ये मेरे पास आ जाएगा total mass of proton plus neutron. And then हम उसमें से minus कर देंगे the total mass of the iron nucleus. And what is the total mass? It is already given in the question. तो जो आंसर आएगा, जो डिफरेंस इन मास आएगा, दिस इज कॉल्ड एज व्हाट? दिस इज कॉल्ड एज मास डिफेक्ट. दिस इज कॉल्ड एज मास डिफेक्ट. आफ्टर दिस वी आर गोइंग टू फाइंड आउट द बाइंडिंग एनर्जी. बाइंडिंग एनर्जी कैसे निकालते हैं? E इज इक्वल टू डेल्टा एम इंटू सी स्क्वायर. व्हाट इज डेल्टा एम? डेल्टा एम इज दिस kg value. It will be multiplied with the value of c. What is c? 3 into 10 power 8. We are going to take the square of it. And at the end when both the values are multiplied, हमारे पास final answer आ जाएगा उसका 7.812 into 10 power minus 11 joules. So energy is how much? Energy will be equals to, ये अभी सिर्फ binding energy आई है. What next we are going to do? We are going to find out the binding energy per nucleon. So what is the binding energy per nucleon I am going to get? So this is the total amount of energy. इस टोटल अमाउंट ऑफ एनर्जी को नंबर ऑफ न्यूक्लियॉन्स ऑफ आयरन से डिवाइड कर दूंगा. तो आयरन के न्यूक्लियॉन कितने हैं? 56.
So whole of this value 7.8 divided by, it will be divided by 56. तो आंसर आ जाएगा हमारे पास 1.395 into 10 power minus 12. बट ये आंसर किस में आया? जाउल्स में आया. क्वेश्चन में उसने हमें किस में आंसर मांगा? It asked the answer in mega electron volt. So what we are going to do to convert it into electron volts? We are going to divide the value by 1.6 into 10 power minus 19, and to convert it into mega, we are again going to divide it by mega. Mega is 10 raised to power 6. ठीक है, तो 10 raised to power 6 से हम इसको फर्दर जो आंसर आएगा उसको डिवाइड कर देंगे, and probably we will be getting a value as 8.7 mega electron volt. जी बच्चों, is this understandable how to use mass defect, binding energy and binding energy per nucleon in calculations? जी student, if there is any sort of query or issue, you can ask. Is it understandable? Speak up, please. Yes, sir. मैं आगे चलूं? Yes, sir. Okay. Okay, moving onwards. Next is we are having a term called as nuclear fusion and fission. So fusion में क्या होता है कि दो लाइटर न्यूक्लियाई आपस में ज्वाइन करते हैं and they form a heavier nucleus या nuclei. So this process is called as nuclear fusion. तो जल्दी से इनको बस हम देखेंगे. तो आप इसको यूं भी डिफाइन कर सकते, the fusing together of two smaller nuclei to produce a larger nuclei. But better definition क्या है वो मैं यहाँ पे अलग से भी लिख देता हूँ. The joining of two lighter nuclei to form a heavier nucleus and the amount of energy is known as nuclear fusion. ठीक है, it is known as nuclear fusion. So the joining of two lighter nuclei to form a heavier nucleus and with the emission of some amount of energy is known as nuclear fusion. ठीक है, इस चीज को हम क्या बोलते हैं? दिस विल बी कॉल्ड एज न्यूक्लियर फ्यूजन. तो जब दो लाइटर न्यूक्लियर आपस में जुड़ेंगे और एक हैवियर न्यूक्लियस पैदा होगा, तो दिस प्रोसेस को हम बोलते हैं न्यूक्लियर फ्यूजन. अब ये प्रोसेस कहाँ पर टेक प्लेस करता है? इट टेक प्लेस इन sun and stars. It take place in hydrogen bomb as well. हाइड्रोजन बॉम्ब्स में भी ये टेक प्लेस करता है, नॉट इन एटॉमिक बॉम्ब्स. हाइड्रोजन बॉम्ब्स में ये टेक प्लेस करता है. और अपार्ट फ्रॉम दिस, तो इसमें हो क्या रहा होता है बेसिकली? एक ड्यूट्रियम इज अ आइसोटोप ऑफ हाइड्रोजन. किसके साथ ज्वाइन करता है? विद ट्रीटियम, अनदर आइसोटोप ऑफ हाइड्रोजन. और उसके रिजल्ट में ये क्या पैदा करते हैं? हीलियम प्रोड्यूस करते हैं. तो देखें, दो छोटे न्यूक्लियाई आपस में जोड़ के क्या बना रहे हैं? एक हैवियर न्यूक्लियाई, और इसके साथ में एक न्यूट्रॉन भी एमिट होगा, प्लस इसके साथ साथ एनर्जी भी रिलीज होती है. ठीक है, दिस रिएक्शन इज एक्चुअली टेकिंग प्लेस इन द सन एंड द स्टार्स एट द मोमेंट.
The two lighter nuclei of hydrogen join together to form a helium. What are the conditions required for it? इसमें जो conditions required होती हैं for the nuclear fusion process to take place is what? It is very high temperature, like above 3000 Kelvin. Very high temperature is required for this process to happen. A very high kinetic energy of the lighter nuclei is required. High kinetic energy or high pressure. Okay, high pressure, high kinetic energy, and high temperature are the requirements, are the conditions for the nuclear fusion reaction to occur. Deepacho, is this understandable? Nuclear fusion is the joining of two lighter nuclei to form a heavier nucleus with the amount of energy and amount of energy is released or produced is known as nuclear fusion. And this is definition generally being asked in the exam paper as well. आगे चलूं? प्लीज स्पीक अप. अच्छा, अब ये 5 मिनट्स में ये सेशन Yes, ब्रेक हो sir. जाएगा तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि आपने दोबारा से दूसरा सेशन ज्वाइन करना है. हमारी क्लास 10:20 तक चलेगी. ओके, मूविंग ऑनवर्ड. तो ये कंडीशन मैंने आपको बता दी है पहले भी कि क्या कंडीशन रिक्वायर्ड, क्योंकि दो न्यूक्लियाई फ्यूज कर रहे हैं तो दे नीड वेरी हाई काइनेटिक एनर्जी. और क्यों हाई काइनेटिक एनर्जी चाहिए? बिकॉज द प्रोटॉन्स इनसाइड द न्यूक्लियस आर हैविंग पॉजिटिव चार्ज, so they are going to repel one another. तो एक एक्सटर्नल एनर्जी चाहिए ताकि ये प्रोटॉन्स एक दूसरे के करीब आ सकें और बाइंड हो सकें और न्यूक्लियस फॉर्म कर सकें एक हैवियर. और ये हाई काइनेटिक एनर्जी कैसे की जा सकती है, अटेन की जा सकती है? बाय क्रिएटिंग द प्रेशर एंड टेम्परेचर वेरी हाई. तो टेम्परेचर को बढ़ा दें और प्रेशर को बढ़ा दें तो काइनेटिक एनर्जी हाई अचीव हो सकती है. नेक्स्ट हमारे पास टर्म आ जाती है न्यूक्लियर फिजन. तो व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ न्यूक्लियर फिजन? फिजन का मतलब है टूटना. तो बेसिकली एक एक लार्जर न्यूक्लियस जो है वो स्प्लिट हो रहा है छोटे छोटे न्यूक्लियाई में या सब एटॉमिक पार्टिकल में. ठीक है, तो इस तरह के रिएक्शन को हम क्या बोलते हैं? फिजन रिएक्शन. इसकी डेफिनेशन क्या है? द स्प्लिटिंग ऑफ लार्जर न्यूक्लियस, एटॉमिक न्यूक्लियस, इनटू अ स्मॉलर न्यूक्लियाई with release of energy. It is known as what? It is known as nuclear fission. ठीक है, तो इसमें एक हाई मास न्यूक्लियस जो है वो ब्रेक होता है, टूटता है into smaller nuclei, and this splitting of a larger atomic nucleus into a smaller one is known as nuclear fission. Where does this reaction take place? So nuclear fission occurs, कहाँ अकर करती है? न्यूक्लियर फिजन अकर नंबर वन इन न्यूक्लियर रिएक्टर्स के अंदर. ठीक है, न्यूक्लियर रिएक्टर्स क्या? न्यूक्लियर पावर प्लांट्स. इट टेक प्लेस इन न्यूक्लियर पावर plants. And apart from this, it also, this reaction is carried out in atomic bombs. So in atomic bombs, this nuclear fission reaction also take place. So nuclear fission is what? It's a splitting of the larger atomic nuclei into a smaller one, and with some emission of energy. This is called as nuclear fission. Is this fine? What is the nuclear fission is? Yes, sir.
I hope you people are writing this down, whatever we are studying. और ये बेसिकली एक चेन रिएक्शन जो है वो आपका बन रहा होता है कॉन्टिन्यूसली। और इसकी हम एक एग्जांपल देख सकते हैं रिएक्शन की कि बेसिकली क्या किस तरह का हो सकता है। लेट्स से एक स्मॉल स्लो मूविंग न्यूट्रॉन होगा, ठीक है, 1 and 0, it is going to hit the uranium. Uranium is 23592। तो जैसे ये न्यूट्रॉन हिट करेगा एक यूरेनियम को, ये रिएक्शन बेसिकली कैरी आउट हो रहा होता है इनसाइड द न्यूक्लियर पावर प्लांट्स, न्यूक्लियर रिएक्टर्स के अंदर, जो न्यूक्लियर एनर्जी को यूज करके वी प्रोड्यूस द इलेक्ट्रिसिटी। देयर इट हैपेंस एंड इट प्रोड्यूसेस बेरियम and it produces krypton with more number of neutrons, almost 3. So barium is like 144 and 56, and krypton is 89 and 36. Okay, this is barium, this is krypton, and 3 further neutrons plus an energy is being produced. इसके साथ साथ कुछ एनर्जी भी प्रोड्यूस हो रही होती है। तो ये जो आपके पास सारा का सारा रिएक्शन है, this whole reaction